या सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रिग्रेशन की मोटिवेशन क्या थे, then what are the basic assumptions for our regression. So we'll assume all those assumptions for our particular regression, and then we find that like the expectation of basic assumption is like expectation of our random error is 0 and the variance of this expectation is sigma square. So as in consequences we can say that the y, or my original function, follows the normal distribution. So when it follows the normal distribution, so expectation is just like on the y equals to mx plus c or the beta plus beta 1 x. Fine. And it follows when we are considering the variance, so it follows the variance of our particular random error. Now what is the base criteria for choosing line? So we had covered that we like to find out the residuals. So what are the residuals? So residuals are just the difference between your uh, original y and expected y or predicted y. Fine. So this is my original y and this is my predicted y. And in regression we usually don't know the original function. If we know the original function, then we can predict any value. So we don't know the original function, so what we are trying to do is that we like to estimate our original function, or we like to predict our original function, and based on this prediction, based on this estimation, we predict the future values or the unseen values. Now we had covered, like for this example, that the summation of residuals is always equals to 0, and we had covered all those examples in the previous class. So again we are having lots of questions related to that particular, why we are going for this squared sum of residuals. So again, when we like to go for this residuals, so based on our residuals, what we are trying to find out is that a line, because we are having lots of lines. Consider over here we are having lots of lines. So let's say we draw a few lines and predicted values and original values for each and every example. Like for this particular line, so we are having the residual values over there, we are having residual values over there, we are having residual values over there for this particular line. Fine. Again we are considering the another line. Let's say this is my line, so we are considering the residual values over there. These are the residual values. Again these are the residual values, these are the residual values, these are again residual values, these are again residual values, and these are the residual values, and for this particular line these are the residual values. Again considering this purple line, so we are considering the residual values over there, these are the residual values over there, residual values, residual values, these are again residual values, these are the residual values, again this is the residual value, and this is the residual values. So what we are trying to do is that, like this is the residual values of purple line, so what we are trying to do is that we are having a residual value of summation of residual value, this is ep. Again for purple line, again this is for residual values for blue line, this is blue, and these are the residual values for residual value summation, and this is summation, so this is for black values. So what we are trying to do is that among all those values, what we are trying to do is that we like to find the minimum values of this residual values. तो जिस लाइन की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी हम वो मान के चलेंगे, रेसिडुअल वैल्यूज इसकी मिनिमम होगी, हम वो मान के चलेंगे कि यार ये जो है ये लाइन सबसे बेटर है. Fine. So this is, and this is known as my loss function. So this is one thing, this is my loss function. So what is a loss function? So loss function just estimate the uh, difference between your predicted values and the original values. For this particular case we are having lots of loss functions available for different types of problems. Fine. So usually what we are trying to do is that we are finding the loss of uh, loss among from the original values and what we had predicted values. So this is my loss values or the objective functions available. So again considering why we are not going for this particular uh, like original value minus predicted value, why we are not going for this particular value. Last class में एग्जाम्पल था भी से. सो मैं जम बोर्ड पर आ जाता हूँ, वापस हम कोशिश करते हैं उसको समझने की. सो लेट्स से एक फंक्शन होता है, दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स फंक्शन. मैं उसको ड्रॉ करता हूँ. दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स फंक्शन. सो व्हाट इज दिस कॉन्वेक्स फंक्शन?
कॉन्वेक्स फंक्शन ये बोलता है कि मेरे पास कुछ, कॉन्वेक्स फंक्शन से पहले हम बात कर लें कॉन्वेक्स सेट की। तो मेरे पास एक कुछ ऐसा एक सेट है जिसमें ये वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास। इसमें मैं इस पर्टिकुलर सेट में कहीं पे भी कोई भी 2 पॉइंट ले लूँ, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो इसमें से अगर एक लाइन जा रही है तो वो इसी सेट के अंदर आ सकती है। आप देखें, मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, तो मेरा ये पॉइंट आ रहा है। तो आप देखिए कि ये मेरी जो लाइन है इस सेट से बाहर आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कॉन्वेक्स नहीं है। आप चलें हम दूसरा एक एग्जांपल लेके चलें कि मेरा एक कॉन्वेक्स सेट मैं ऐसा ले लेता हूँ। वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज द स्मूथ सर्कल, फाइन। अब मैं यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट ले लूँ, जैसे एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, एक पॉइंट यहाँ ले लूँ और एक पॉइंट यहाँ ले लूँ। कोई से भी 2 पॉइंट आप कहीं पे भी ले लें, कहीं पे भी ले लें, यहाँ पे ले लें या यहाँ पे ले लें, तो ये सारे पॉइंट जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर लाइन के उस पर्टिकुलर सेट के अंदर आते हैं। तो ऐसे जो सेट्स होते हैं दिस आर नोन एज कॉन्वेक्स सेट। नाउ अब इन सेट्स को जो सेटिस्फाई करते हैं, कुछ फंक्शंस डेफिनेशन से सेटिस्फाई करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है, अभी हम क्या बोल रहे हैं अभी हम बोल रहे हैं कि हम जो है कुछ मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यूज ऑफ आर रेसिडुअल्स। तो हमारे पास डिफरेंट लाइन्स हैं, तो दिस इज रेसिडुअल ऑफ लाइन 1, दिस इज रेसिडुअल ऑफ लाइन 2 एंड दिस इज, मैं उसको ई से रिप्रेजेंट कर रहा था ना, फाइन। तो रेसिडुअल ऑफ लाइन 1, रेसिडुअल ऑफ लाइन 2 एंड रेसिडुअल ऑफ लाइन 3। हम ये करने की कोशिश कर रहे थे कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी हम उसको बोलेंगे कि वो लाइन बेटर है। अब ठीक है, हमारे पास में इस रेसिडुअल को मैं यहाँ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो हमने रेसिडुअल क्या निकाला था, E इक्वल्स टू ओरिजिनल y, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ओरिजिनल y माइनस प्रिडिक्टेड y, ये हमने कोशिश करी थी। अब इसको अगर मैं यहाँ से रिप्रेजेंट करूँगा तो y माइनस वाई हेड दोनों स्केलर वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल्स टू एक्स, कोई एक पर्टिकुलर लाइन आ जाएगी। तो इस e को अगर मैं लॉस फंक्शन ही बोल रहा हूँ, दिस इज माई एफ ऑफ एक्स, तो मेरे पास वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग आएगी। हो सकता है कि इसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी जुड़ जाए, लेट्स से सी, लेट्स से 3, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू। इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, हम इसको यहाँ से प्लॉट कर लेते हैं इस ड्रॉप पे। दिस इज एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। तो अगर x हमारा 0 होगा तो हमारा दिस इज माई ई एक्स और दिस इज माई एफ एक्स, फाइन, एंड दिस इज माई एक्स। सो मेरा x अगर 0 है तो मेरा y कितना है, दिस इज 1 2, सॉरी एफ एक्स कितना है, दिस इज 3। तो मेरा यहाँ पे ये एक 3 होगी, सॉरी मैंने रबर लिया, फाइन। सो दिस इज y इक्वल्स टू 3। फिर मेरा दिस इज y इक्वल्स टू 1, तो मेरा क्या हो गया, 4 हो गया, देन 5 हो गया। तो मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन ऐसी आती गई। अब मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, इस वैल्यू की, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हम बोलेंगे कि x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी होगी, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, तब हमारी इस वैल्यू की, इस फंक्शन की वैल्यू आएगी। अब क्योंकि ये तीनों हमारे स्ट्रेट लाइंस हैं, तो ये भी माइनस इन्फिनिटी, ये भी माइनस इन्फिनिटी और ये भी माइनस इन्फिनिटी। तो मैं क्या पता कर सकता हूँ कि मेरी ये स्ट्रेट लाइन अगर मैं लेके चला हूँ तो मैं मिनिमम वैल्यू पर पहुँच पाऊँगा। एनी सजेशंस, क्योंकि ये माइनस वैल्यूज़ हैं और माइनस इन्फिनिटी आ रही, तो मैं माइनस इन्फिनिटी पे तो नहीं पहुंच सकता कि मेरी लाइन कौन सी मिनिमम है। तो अब दूसरा तरीका क्या करें, हम उसके लिए कॉन्वेक्स फंक्शन बना लें। हम पे डिपेंड करता है ना, तो हम क्या करें, इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम क्या करें, स्क्वायर पे ले लें। इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम रेस्ट टू द पावर, सॉरी हियर इज द फंक्शन, सो दिस इज रेस्ट टू द पावर 2 पे ले लें। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी यहाँ से। सो दिस इज रेस्ट टू द पावर 2 ले लें। अब रेस्ट टू द पावर 2 को अगर हम ड्रा करने की कोशिश करें, लेट्स से अगर इसको हम यहाँ से रेस्ट टू द पावर ड्रॉ भी करें, दिस इज एफ एक्स
equals to, we are not saying that this is x raised to the power x raised to the power 2 है प्लस कुछ कांस्टेंट हो गया, लेट्स से अगेन कांस्टेंट इज 4, लेट्स से मैंने 3 हुआ, लेट्स से 4, मैं इसको फिर प्लॉट करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ से मैं इसको प्लॉट करता हूँ, मैं यहाँ से इसको प्लॉट करता हूँ, सॉरी ये मेरी वैल्यू हटा देता हूँ, सो दिस इज 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7 and so on. This again 1, 1, minus 1, this is minus 2, this is 2, this is minus 3, this is plus 3. Now हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो लेट्स से x की वैल्यू मेरे पास अभी हुई 0, तो मेरे पास fx की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 4, मेरे पास x की वैल्यू हो गई 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज x की वैल्यू 1, तो fx की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू है लेट्स से 1, तो 1 दिस इज इक्वल्स टू 5, तो मेरे पास हो गया दिस इज 5, x की वैल्यू मेरे पास -1 आई, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई, अगेन पॉजिटिव 5, सो दिस इज 5, तो हमारे पास वैल्यू क्या हुई, ऐसे आ गई, 2 की वैल्यू आई, तो दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 4 + 4, सो दिस गोज टू योर 8 एंड हियर इट इज गोज टू 8, तो हमारे पास कर्व कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हमारे पास मिनिमम वैल्यूज आ रही हैं, इज इट फाइन। तो हमारा मोटिवेशन समझ में आया कि हम ये वाला जो चीज़ है, ये लीस्ट सम ऑफ स्क्वायर वैल्यूज क्यों ले रहे हैं, हम लीस्ट, अगेन वी आर गोइंग द लीस्ट सम स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या हो गया, मैं ई की जगह क्या कर रहा हूँ, दिस इज ई स्क्वायर, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग फॉर मिनिमम ऑफ वैल्यूज, सो आई एम गोइंग फॉर मिनिमम ऑफ वैल्यूज फॉर कौन सा, ये E1 था, E1 मतलब कोई लाइन 1 होगी उसका स्क्वायर, हमारे पास E2 था, अगेन दिस इज E2 था, इसका स्क्वायर, देन E3 था, हमारे पास बहुत सारी लाइंस थी, उसका स्क्वायर अप टू लॉट्स ऑफ लाइन, तो क्या अब मैं मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ, एग्जैक्टली मैं यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ, अगर ये मेरा फंक्शन +4 की जगह -4 में आता तो ये मेरा कर्व जो है, मेरा कर्व यहाँ से स्टार्ट हो जाता और कुछ नहीं था, इज इट फाइन, इतना समझ में आया, नो रिस्पॉन्स, Yes. okay, Yes, sir. okay, so this is the basic motivation behind selecting why we are going for the least sum of square, so again this is the motivation, so motivation, आप थ्योरी में जाएंगे, थ्योरी में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, वो बोलेंगे कि सर इसका समेशन 0 होता है, तो हम क्या करते हैं कि माइनस साइन हटाने के लिए हम स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस साइन हटाने के लिए स्क्वायर ले लेते हैं, तो यार सामने वाला ये भी बोलता है कि यार इस इंस्टेड के में इसका एब्सोल्यूट फंक्शन ले लेता, एब्सोल्यूट फंक्शन भी ले लेता, तो माइनस साइन तो हट जाता, पर माइनस साइन हट भी जाता तो मेरे पास क्या होता, मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी, इसलिए हम स्क्वायर वैल्यूज पर जा रहे हैं, सो this is known as least square estimate. So what we are trying to do is that the method of least square chooses the line, so that chooses line, this is beta hat, अभी बीटा हैट और बीटा 1 पर हम बाद में जाते हैं, so this is beta hat, so these are known as the parameter that makes the sum of squares of residual, so this is sum of squares of residual as small as possible, so what we are trying to do is that we like to minimize, what we are trying to do, we like to minimize, what we like to minimize is, this is my original function and this is my estimated function, so this is my original function and this is my estimated function, so what we are trying to do is that ये original function, ये estimated function जिसको मैंने यहाँ पे लिखा भी था, this is sorry मेरा पॉइंटर कहाँ गए, sorry so again I am going back to here and ये मेरा जो था, this is my y hat and this is my original y. Now for given for particular observation when y equals to sorry x and y है, now अब हमारे पास ये पता है कि हमारे पास एक फंक्शन है x स्क्वायर, अगेन मैं इसी पर आता हूँ, तो मेरे पास एक फंक्शन है, पर्टिकुलर फंक्शन, ये वाला फंक्शन है या ये वाला फंक्शन है, तो इस वाले फंक्शन की वैल्यू
हमारे पास मिनिमम कब होती है, हमारे पास इस पर्टिकुलर वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कब होती है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चालू करते हैं। ये हमारा एक फंक्शन है, ये वाला फंक्शन था, इस फंक्शन को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो लेट्स से मैं नोटपैड खोलता हूँ अगेन, तो मेरे पास एक फंक्शन था, दिस इज, मैं इसकी साइज भी बढ़ा देता हूँ, मेरे पास फॉर्मेट, दिस इज फॉन्ट एंड I like to increase my size, fine, okay। so मेरे पास एक फंक्शन था, दिस इज fx इक्वल्स टू, एक फंक्शन था x प्लस 4, और दूसरा फंक्शन था fx इक्वल्स टू लेट्स से x प्लस 4। नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग ऑल दोज फंक्शन, तो मैं इसको बोल देता हूँ f1x, हम उसको वापस मिनिमम वैल्यू को दूसरी तरीके से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं डिफरेंशिएट करता हूँ df बाय dx, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसको डिफरेंशिएट करके बताओ मेरे को पहले। अब इसमें क्या होता है कि हम जब यहाँ पर आ रहे हैं तो इस पर्टिकुलर वैल्यू में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट का मतलब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज यहाँ पर अगर जहाँ मिनिमम वैल्यू होगी वहाँ रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ना वैल्यू बढ़ेगी ना चेंज होगी, तो वहाँ पे रेट ऑफ वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो नाउ वी आर इक्वेटिंग इट इक्वल्स टू जीरो। अगेन अगेन आई एम इक्वेटिंग इट इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या, ये पॉसिबल है, 1 इक्वल्स टू जीरो, 1 इक्वल्स टू जीरो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम वो जो स्क्वायर्ड सम ऑफ एरर्स जो था हम वो निकाल सकते हैं, हम ये तो नहीं निकाल सकते। इज इट फाइन। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यूज़ कहाँ आ जाती हैं, हमारे पास मिनिमम वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर हम उसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो दिस इज़ नहीं, दिस इज़ 2x, फाइन। तो हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं हम उसको डिफ्रेंशिएट करके उसको इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। सो वी आर गोइंग फॉर particular values now। again I am moving to my slide। so मैं उसको डिफ्रेंशिएट करके उसको इक्वेट कर रहा हूँ जीरो पे। तो मैं उसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे देखो दो पैरामीटर्स हैं, दिस इज बीटा नॉट और दिस इज बीटा वन। तो मेरे को इनको क्या करना पड़ेगा, मेरे को इन दोनों को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने के बाद मैं क्या करूँगा, उसको इक्वल्स टू जीरो करूँगा। तो पहले इस लाइन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दिस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट। उसके बाद हम क्या करते हैं, बीटा वन से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम बीटा नॉट से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आपका ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के ऊपर कहाँ पर आ गया, ये आ गया। अब आपके पास क्या मिला, 2x मिला। सो देखो आप यहाँ पर हम इसको ले आए, तो हम यहाँ पर बीटा नॉट को लिया है, बीटा नॉट के साथ करा तो -2 आपके पास बाहर आ गया। अब उसके साथ हमारे पास क्या था, बीटा नॉट था। अब उसके बाद क्या हुआ, बीटा नॉट डिफ्रेंशिएट होगा, बीटा नॉट डिफ्रेंशिएट हो भी जाएगा। तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमको कोई वैल्यू नहीं देगी, तो वो इनटू हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, 1 होगा। पर बीटा नॉट का हमारे पास साइन क्या था, माइनस था, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। तो हमारे पास वैल्यू आ गई -2। फिर हमारा वो जो फंक्शन था वो फंक्शन। इज इट फाइन, ये लाइन समझ में आई आप लोगों को। यस सर। ओके, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो करा, ये 2 उठ के इधर आ गया, दिस इज अगेन जीरो। 2 ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू जीरो, माइनस ऑफ समथिंग इक्वल्स टू जीरो, तो -2 इधर ले गए, तो ये -2 इधर आ गया। अब इस समेशन को हम यहाँ खोल लेते हैं, समेशन को खोल लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू yi को हम समेशन पे ले आए, दिस इज अगेन समेशन। इस समेशन को बाहर ले आए, क्योंकि ये बीटा नॉट क्या था, ये बीटा नॉट क्या था, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज थी, स्केलर वैल्यूज थी। तो इसको हम समेशन भी करेंगे, तो ये क्या होगा, n टाइम्स जो होगा वो हमारे पास बीटा नॉट आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाए, बीटा वन भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, अभी मैं इसको रैंडम नहीं बोल रहा हूँ। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये फंक्शन हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है। तो वैल्यू को क्या भी जो भी होंगी वो इटरेट किस पे होंगी, एक्स पे होंगी। तो यहाँ पर भी बीटा नॉट के साथ भी इटरेट नहीं होगी, तो हम n टाइम्स बीटा नॉट को ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, n टाइम्स बीटा नॉट। देन हम बीटा वन को भी बाहर ले लेते हैं, क्योंकि तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसके बाद इसको हम समेशन करते हैं, तो ये हमारे पास समेशन ऑफ एक्स है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एफ ये जो है वाई और
x पर था, तो दिस इज इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब या वैल्यूज इटरेट हो रही हैं। अब बीटा नॉट को हम ले लेते हैं, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर लाइन को। तो इस पर्टिकुलर लाइन को हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे, हमको बीटा नॉट निकालना है ना, दिस इज माई सी, तो बीटा नॉट निकालना है। तो इसको उधर ले गए, उसको उधर ले गए, तो हमारे पास क्या मिला, समेशन वाई आई अपॉन एन इंटू सॉरी माइनस बीटा वन इंटू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। अब दिस समेशन ऑफ वाई आई अपॉन एन, इसका मतलब होता है वाई वन टू लेकर वाई एन तक अपॉन एन, दिस इज इक्वल्स टू mean of y, this is equals to mean of x into beta 1. So what we can say that beta naught is equals to y bar minus beta 1 x bar. समझ में आया? And these are known as the normalizing equation. So this is my first beta naught. Beta naught की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, y bar minus beta 1 x bar. चीजें समझ में आई? इतनी आई? सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करा मैंने, इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 कर दिया। सिमिलरली हमारा जो फंक्शन था सम ऑफ स्क्वायर को हमने क्या करा, अब बीटा 1 से करा, तो बीटा 1 से करा तो दिस इज -2, जो क्योंकि वो स्क्वायर की वैल्यू थी -2 बाहर आई, फिर वही फंक्शन रहा, अगेन एक्स आई आ गया, क्यों, क्योंकि इसके साथ एक्स आई लगा हुआ था, तो एक्स आई हमारे पास यहाँ बाहर आ गया अगेन। अब इस -2 को उधर ले जाते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या मिलता है, समेशन ऑफ वाई आई एक्स आई माइनस बीटा नॉट एक्स आई माइनस बीटा 1 एक्स आई, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स आई माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बीटा 1 एक्स आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। क्यों ये मैंने वाई बार क्यों ले लिया, क्योंकि मेरे पास वो नीचे अपॉन एन था, तो ये सारी चीज़ें आ गई। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू एक्स आई, अब हम इसको अपन ऊपर ले लेते हैं ना यहाँ पे, दिस इज एक्स आई अपॉन वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एक्स आई माइनस एक्स बार। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब क्या कर रहे हैं, ये एक्स आई से एक्स आई हम हटा दें, एक्स आई से एक्स आई हम अगर हटा देंगे तो अब हमारे पास क्या बच रही हैं वैल्यूज़, हमारे पास वैल्यूज़ बच रही हैं दिस इज़ वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एक्स आई माइनस एक्स बार। ये चीज़ें अभी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो हम इसमें क्या कर लें, एक्स आई माइनस एक्स बार और ऊपर नीचे दोनों बार एक्स आई माइनस एक्स बार का मल्टीप्लाई कर लें। तो ये मेरे पास क्या हो गया, दिस इज़ वेरियंस ऑफ, दिस इज़ कोवेरियंस ऑफ x and y, and this is variance of x. This is covariance of x and y, and this is variance of x. Is it fine? So हम क्या बोल सकते हैं, बीटा नॉट। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है मेरे पास, मैं यहाँ पर अब बीटा की जगह बीटा हेट लिख रहा हूँ, दोनों जगह बीटा नॉट हेट और बीटा 1 हेट। तो अब हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था कि यार मैंने लाइन की इक्वेशन थी y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स। अब क्योंकि मेरे को ओरिजिनल y नहीं पता, तो ओरिजिनल y नहीं पता, फंक्शन नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास m और c की वैल्यू मतलब बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यूज़ ही नहीं पता। अगर बीटा 1 और बीटा नॉट की वैल्यू पता हो जाती तो y हमको पता चल जाता, पर हमको बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यूज़ नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, एस्टिमेट कर रहे हैं। एस्टिमेट कैसे कर रहे हैं, ट्रेनिंग सैंपल से कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग सैंपल से हम उसको एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ट्रेनिंग सैंपल से हम उसको एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यूज़ ये आ रही हैं। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास ओरिजिनली वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो ये क्या बोलते हैं हम, दिस इज़ माई एस्टिमेटेड वैल्यूज़। इज इट फाइन? अब इसमें इसके कैलकुलेशन हम बाद में जाते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो मैं फिर एक एक्सेल खोल लेता हूँ, उस एक्सेल के साथ ही हम एक एग्जाम्पल यहीं से कोशिश करते हैं कि हमारा एक्सेल पर हम चालू कर लें। My reviews, just a minute, file खुल जाएगी। तो ये दोनों नॉर्मलाइजिंग इक्वेशन आप लोगों को समझ में आए? ठीक है, तो हम फिर वही ले लेते हैं, एक x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं यहाँ पर, इसमें फिर कुछ वैल्यू ले लेते हैं 100 200 300 400 500। यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम, दिस इज लेट्स से 8, दिस इज 9, दिस इज 15, दिस इज 16, दिस इज 17। हम ये फंक्शंस ले लेते हैं। अब क्या करते हैं,
हमको क्या निकालना है, बीटा वन, और हमको क्या निकालना है, दिस इज बीटा वन और बीटा नॉट। बीटा नॉट की वैल्यू क्या है, वाई बार, और इसकी क्या वैल्यू है, एक्स बार। ठीक है, हम वैल्यूज निकालना चालू करते हैं। तो अब मेरे पास एक्स बार कितना होगा, एक्स बार हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो एक्स बार की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो दिस इज माई एक्स बार, दिस इज माई एक्स बार। सिमिलरली मेरा वाई बार क्या था, वाई बार हम यहाँ से निकाल लेते हैं अगेन। सो दिस इज माई वाई बार। ठीक है, सो दिस इज माई मीन। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। दिस इज वाई बार माइनस एक्स बार। अब हम क्या करते हैं, हमको और क्या क्या चीज़ें निकालनी है, हमको चीज़ें निकालनी है बीटा वन। अब इसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको बीटा वन चाहिए। तो अब बीटा वन क्या है, बीटा वन है एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। फाइन। तो अब हम निकालते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार। तो हम यहाँ निकाल देते हैं एक्स आई माइनस मीन एक्स। तो हम इसको निकाल लेते हैं एक्स आई माइनस मीन एक्स। तो एक्स आई माइनस मीन एक्स को हम कैसे निकालेंगे, सो दिस इज माई, हम यहाँ निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व ही कर रहा हूँ मैं इसके हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। तो दिस इज माइनस, माइनस में क्या कर लेते हैं एक्स बार। तो मैं इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देता हूँ, दिस इज डॉलर साइन, दिस इज माई कांस्टेंट वैल्यू। तो मेरे पास वैल्यू आ गई, दिस इज माइनस 200। अब यहाँ से मैं उसको सभी जगह ले आता हूँ। तो देखो ये एक्स आई माइनस एक्स बार हमारे पास आ गया, 300 में से 100, 200, 300, 300, दिस इज गुड। मैं यहाँ पे अब क्या कर लेता हूँ, वाई आई माइनस मीन वाई, हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज दिस इज इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर कॉल सेल माइनस क्या करेंगे, माइनस इस मीन को करेंगे, यहाँ पर इसको कांस्टेंट करना है। तो हम इसको डॉलर का साइन यहाँ लगा देते हैं और इसको यहाँ से खींच लेते हैं। तो 13 में से 8 गए, तो हमारे पास कितने बचे, दिस इज -4। तो हमारे पास ये दोनों मीन की वैल्यूज़ आ गई। अब हमको क्या वैल्यूज़ निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। तो एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो हमको क्या चाहिए, न्यूमरेटर में हमको क्या चाहिए, इसका प्रोडक्ट चाहिए। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, दिस इनटू दिस, हम ऊपर कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब इसमें हमको क्या चाहिए था, समेशन चाहिए था। तो सभी का समेशन चाहिए था, तो इसको यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी वैल्यू समेशन। अब हमारे पास क्या था, डिनोमिनेटर में क्या था, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू का हमको चाहिए था स्क्वायर। हम यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज अगेन इक्वल्स टू दिस इनटू अगेन दिस सेल। सो ये हमारे पास आ गया, इसको हम यहाँ पर नीचे ले आते हैं और इसके बाद इसको भी क्या कर देते हैं, सम, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास था समेशन। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब बीटा वन हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास दिस इज, तो हम बोलते हैं बीटा वन क्या है, बीटा वन है एक्स वाई, ये हमारे पास एक्स वाई, दिस इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो मेरे पास ये आ गया, दिस इज बीटा वन। सो ये हमारे क्या हो गया, लाइन का स्लोप। अब हमारे पास क्या था, अब हमारे पास था बीटा नॉट क्या था, बीटा ज़ीरो। तो बीटा नॉट हमारे पास क्या था, बीटा नॉट की लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, दिस इज वाई बार माइनस बीटा वन एक्स बार। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस क्या था, बीटा वन इंटू एक्स बार। तो दिस इज माई एक्स बार। तो ये मेरे पास अब इक्वेशन आ गई। तो अब मेरी इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी मेरी इक्वेशन थी, मेरी लाइन की इक्वेशन क्या थी, लाइन की इक्वेशन थी y इक्वल्स टू बीटा ज़ीरो प्लस बीटा वन इंटू एक्स। तो अब लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल्स टू बीटा नॉट क्या था 5.5
प्लस बीटा 1 क्या था मेरा, बीटा 1 था 0.025 इंटू एक्स। ये मेरी लाइन की इक्वेशन हो गई। सो ये मेरी लाइन की पर्टिकुलर इक्वेशन हो गई। अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मेरा जो नया y था उसको यहाँ से मैं प्रिडिक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ हम लिख लेते हैं दिस इज क्या, प्रिडिक्टेड y। तो ये प्रिडिक्टेड y। अच्छा, ये बीटा 1 और बीटा नॉट जो थे ये प्रिडिक्टेड थे ना, ओरिजिनल नहीं थे। ओरिजिनल तो हमको पता ही नहीं है। तो अब यहाँ पे लाइन की इक्वेशन हम लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, 5.5 इंटू 0.25 इंटू एक्स। तो x क्या था हमारे पास, ओरिजिनल वैल्यूज को हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो अरे दिस इज गुड, 8 वैसा के वैसे ही आया मेरे पास। किसी में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा, देख लेते हैं एग्जैक्टली। तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। अब इसमें से हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस मेरे पास क्या आ रहा है, डिफरेंस का मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज रेसिडुअल। तो हमारे पास रेसिडुअल है। रेसिडुअल क्या था, ओरिजिनल y। सो दिस इज इक्वल्स टू क्या कर लेते हैं हम, दिस इज ओरिजिनल y, दिस इज ओरिजिनल y माइनस क्या कर लेते हैं हम, प्रिडिक्टेड y। तो हमारे पास वैल्यू आ गई। दिस अगेन 0, हमने सही एस्टिमेट करा और यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। मैंने बोला था कि एस्टिमेटेड वैल्यू और उनका सम जो होता है हमेशा 0 होता है। इसको हम सम कर लें, देखो ये वैल्यू 0 आ गई। तो हमारे पास रेसिडुअल क्या हो गई, 0 हो गई। हम क्या चाहते थे, हमने सम ऑफ स्क्वायर देखा था, तो हम यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर भी देख लेते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल, तो इसमें क्या करा था हमने, दिस इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या पावर फंक्शन लगाते हैं, पावर फंक्शन मतलब स्क्वायर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, दिस इज गुड। पावर में क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, अगेन दिस इज गुड। अब यहाँ देखो आप, हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ आ गई। इसका सम कर देते हैं, देखो मेरे पास सम की वैल्यू आ गई। ये 0 नहीं है, तो हम सम ऑफ स्क्वायर्ड हम क्यों निकाल रहे हैं, इतनी जगह वैल्यू से हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखें कि ये जो हमने कैलकुलेशन करा था, क्या ये कैलकुलेशन हमारा सही था। हम जो है ऑटोमेटिक टूल यहाँ से उठा लेते हैं। तो हम यहाँ से ऑटोमेटिक टूल में इंसर्ट कर लेते हैं, क्या इंसर्ट कर लेते हैं, हम चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। चार्ट इंसर्ट कर, ये हम लोगों ने कर लिया। चार्ट इंसर्ट करने के बाद क्या कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन पे हम लीनियर रिग्रेशन ही डाल देते हैं। तो ए ट्रेंड लाइन पे मैं क्या कर लेता हूँ, लीनियर रिग्रेशन ले आता हूँ और मेरे पास लाइन की इक्वेशन भी डिस्प्ले कर लेता हूँ। देखो मेरी लाइन की इक्वेशन वही आई, दिस इज 0.025x इंटू प्लस 5.5। तो ये मैंने क्या करा, वैल्यू एस्टिमेट कर ली। इज इट फाइन? यस सर। पूरी प्रोसीजर समझ में आ गई है ना। मैंने पेन से नहीं करा, मैंने एक्सेल पे सॉल्व कर लिया इसको, थोड़ा सा मेरे को इजी रहा और कुछ नहीं। हमको जब एग्जाम आएगी तो हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज गुड, यस सर। ओके फाइन। देन अगेन मूविंग टू आवर स्लाइड। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व आवर लीनियर स्क्वायर एस्टिमेट। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर इसके पीछे का जो कैलकुलेशन है वो कंप्यूटर करता है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, हमको पीछे प्रोग्राम बनाना है, उसके बाद हमको ये वैल्यूज़ निकालनी है। अब हम इसमें पॉइंट एस्टिमेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि सिलेबस में हमको पॉइंट एस्टिमेशन भी दे रखा है। किसका, तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास 2 पैरामीटर्स हैं। इस लाइन में मेरे पास 2 पैरामीटर्स हैं। 2 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, इस लाइन की इक्वेशन पे अगर मैं आता हूँ, हमने लाइन की इक्वेशन, यहाँ मेरे को बता सकते हैं 2 पैरामीटर्स आपको कौन कौन से अवेलेबल हैं जो अननोन है। दो पैरामीटर्स, नहीं पता। तो हमारे पास जो 2 पैरामीटर्स अवेलेबल हैं वो 2 पैरामीटर्स ये हैं कि एक पैरामीटर ये वाला है, सॉरी,
एक पैरामीटर ये है और एक पैरामीटर ये है, और ये दो पैरामीटर तो हमको नहीं पता थे, तो ये दो पैरामीटर को हम एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों को एस्टिमेट कर लिया, तो इस पैरामीटर का मतलब क्या आ रहा है हमारे पास? इस पैरामीटर का मतलब ये आ रहा है कि हमने ये जो दो एस्टिमेट करा था ना, दिस इज लाइक दिस इज 5.5 एंड 2.5, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास जो लाइन बन रही है ना, वो लाइन कैसी बन रही है? दिस इज इक्वल्स टू 0.25x। देखो मेरे पास अगर दो पॉइंट होते, सिर्फ ये दो पॉइंट होते, तो इन दोनों पॉइंट से एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट होते तो मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में सीधी एक लाइन खींच सकता था। पर हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स थे, तो उस मल्टीपल पॉइंट्स में मैं क्या करूँगा, मेरे को एक ऑन एन एवरेज एक लाइन निकालनी है। तो अब ऑन एन एवरेज एक लाइन निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि हम क्या करेंगे कि इस x में किसी का y इक्वल्स टू क्या होगा, इस y के इक्वल्स टू क्या होगा, कुछ इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस इसमें कुछ ऐड होगा, इसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा फिर कुछ ऐड होगा। तो ऑन एन एवरेज मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, इसमें ऑन एन एवरेज मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स में 0.025 और ऐड हो रहा है 0.55। तो इन सभी में 0.5 ऐड हो रहा है और 0.025 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, देखो दिस इज 5.5 ऐड हो रहा है और 0.025 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी 5.5 ऐड हो रहा है, 0.25 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिग्रेशन कर रहे हैं। हमारे पास अननोन वैल्यूज क्या थी, हमारे पास अननोन वैल्यूज थी ये दो पैरामीटर, दिस इज नोन एज 5.5 एंड 0.25। अब इसको मैं अगर हम इसको बोलें कि मैं इसको अगर लिखने की कोशिश करूं वेक्टर्स में या मैट्रिक्स में, ठीक है ना। सो दिस इज माय पर्टिकुलर y और ये एक मेरा वेक्टर था, दिस इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू, अब मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है मेरे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, दिस इज नोन एज बीटा नॉट, और दूसरा क्या आ रहा है मेरे पास, बीटा 1। तो इसको मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो ये मेरे पास x था, इसका डायमेंशन क्या था, इसका डायमेंशन था n×1, इसका भी डायमेंशन क्या था मेरे पास, सॉरी हम मेरे पास नंबर ऑफ रोज थी ना, फाइन। सो दिस इज नंबर ऑफ रोज, देन दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, अगेन दिस इज n×1, सॉरी हम इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे n×1 एंड दिस इज माय बीटा नॉट, और ये हो गया हमारा पास बीटा 1। तो हमारे पास ये क्या था, n×1, और ये हमारे पास क्या था, 1×2, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया, हाँ, y इक्वल्स टू बीटा ट्रांसपोज, सो दिस इज माय बीटा ट्रांसपोज x, तो बीटा ट्रांसपोज, सॉरी ओके फाइन। सो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, दिस इज माय रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, सो दिस इज माय बीटा ट्रांसपोज। सो मेरे को n×1 चाहिए, तो मेरे पास क्या होना चाहिए यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन n क्रॉस समथिंग का इनटू उसमें क्या होना चाहिए 2× समथिंग 1 का, तो n×2 और 2×1। तो मेरे पास यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर मेरे पास x होना चाहिए, ये x होना चाहिए, यहाँ पर मेरे पास कितना होना चाहिए, मेरे पास यहाँ बीटा होना चाहिए। सो दिस इज माई x एंड दिस इज माई बीटा पर्टिकुलर मैट्रिक्स, फाइन। So this is my particular data that is available for us. So this is 1, sorry, n×1 and this is 1×, fine. So this is my particular line available. So this is particular data that is for available. तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इज इट फाइन? अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस पे वापस आते हैं। तो हम अब यहाँ पर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस कैलकुलेट में हमारे पास क्या है, अब पॉइंट एस्टिमेशन पे आते हैं। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, फाइन। पहली चीज़ थी उसका मीन और दूसरा था हमारे पास उसका पर्टिकुलर वेरिएंस। तो हमने चेक करा था पॉइंट एस्टिमेट से कि हमने जो मीन निकाला था और जो पॉपुलेशन का मीन था वो एग्जैक्ट था, क्या हमने जो वेरिएंस निकाला था
और जो पॉपुलेशन का वेरिएंस था वो सही था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही पॉइंट एस्टिमेट में करेंगे। इस पॉइंट एस्टिमेट में क्या करेंगे, जो ओरिजिनल वाई का मीन था जो हमको नहीं पता था, और हमने जो एस्टिमेट करा था मीन, क्या वो एग्जैक्टली उसके बराबर आ रहा है। दूसरी चीज़ आ रही है हमारे पास कि क्या हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं हमारी पॉपुलेशन, ठीक है ना, हमारा जो वेरिएंस था, तो क्या डेटा का वेरिएंस उतना ही आ रहा है या ओरिजिनल वाई का वेरिएंस उतना ही आ रहा है जितना वेरिएंस हमारा इस पर्टिकुलर डेटा का या एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का आ रहा है। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने जो सम ऑफ रेसिडुअल्स निकाला था, है ना, एस स्क्वायर क्या था, वाई आई माइनस वाई हेड का होल स्क्वायर। तो दिस इज वाई आई माइनस वाई हेड का होल स्क्वायर। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमको अननोन वेरिएंस निकालने हैं। तो अब देखो कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज व्हाट, this is equals to, like we are looking for, this is ss residual equals to ssy, ये मैंने y s डबल लिख दिया है यहाँ पे, इसको आप हटा दें। तो दिस इज ss वाई वाई माइनस बीटा वन स्क्वायर एस एस एक्स। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको अगर हम सॉल्व करेंगे लाइक ओवर हियर, इसको हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो हमको ये वाली इक्वेशन मिलती है। इन दोनों इक्वेशंस को हम चेक करते हैं कि वेदर दिस इज एस एस रेसिडुअल, इसका एक्सपेक्टेशन क्या है। तो इसका एक्सपेक्टेशन हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका एक्सपेक्टेशन हम देख लेते हैं, दिस इज दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन आ गया, इसका भी एक्सपेक्टेशन आ गया, बीटा वन हेड का भी एक्सपेक्टेशन हो गया, दिस इज एस एस। फिर यहाँ मैंने एस गलत लिख दिया 2 बार, राइट, तो इसको आप डिलीट कर दीजिएगा। तो हम इसको एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन में हमको पता था व्हाट इज एस एस वाई, इसको अगर आप स्क्वायर को खोलेंगे ना, तो दिस इज वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर एंड बीटा नॉट को, इन सभी चीज़ों को हम रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। मेरा यहाँ पर पेन की पॉइंटर ऑप्शन आ नहीं रहा है, सॉरी फॉर, पॉइंटर ऑप्शन आ नहीं रहा है, वरना मैं आपको दिखाता। यहाँ लिखता दिस इज वाई आई, बीटा हेड क्या था मेरा, बीटा नॉट क्या था, वाई आई माइनस, दिस इज बीटा नॉट इक्वल्स टू वाई आई माइनस वाई एन, सॉरी मेरे पास क्या था, बीटा नॉट, सॉरी मैं भूल गया, दिस इज वाई बार माइनस बीटा वन एक्स स्क्वायर। तो दिस इज, हम अगर यहाँ इसको लिखेंगे वाई आई माइनस वाई बार माइनस बीटा वन स्क्वायर, और इसकी वैल्यूज बीटा नॉट को रिप्लेस कर लेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, दिस इज वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, दिस इज कोवेरियंस ऑफ वाई, सॉरी वेरियंस ऑफ वाई, अगेन दिस इज बीटा वन, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज एन एक्स बार माइनस एक्स बार, तो दिस इज एक्स एस बार। तो इसको वापस हम वैसे के वैसे ही खोल लेते हैं। तो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एस वाई वाई, दिस इज इक्वल्स टू वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एस वाई वाई, दिस इज वेरियंस ऑफ वाई वाई। तो दिस इज वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपन खोलेंगे, तो हम अब इसके अंदर जाते हैं। तो अब देखो कि पहले समेशंस पे जाते हैं और उसके बाद हम स्क्वायर पे जाते हैं। तो क्योंकि वाई आई इंटू वाई बार, एक वाई आई है एक वाई बार है, वाई बार क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, वाई आई स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर इंटू टू वाई आई वाई बार। अब वाई आई इंटू वाई बार, अब इसका अगर हम वेरिएंस निकालने की कोशिश करें, वाई आई माइनस वाई बार, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से कभी रिलेटेड होती नहीं है। अब कोई भी वैल्यूज, सारी सेट ऑफ वैल्यूज और उसका मीन, उन दोनों का जब हम वेरिएंस निकालते हैं तो वो हमेशा जीरो हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, टू वाई आई माइनस वाई बार को हम जीरो कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई होल स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं। अब इसके साथ हमारे पास समेशन का साइन है। अब समेशन का साइन है तो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन ऑफ वाई आई का होल स्क्वायर माइनस, अभी एक्सपेक्टेशन है या समेशन का होल स्क्वायर है। अब वाई बार क्या है, वाई बार मेरा कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू को मैं n टाइम्स ऐड भी करूँगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, n वाई बार ही मिलेगा। तो n वाई बार मिल गया, एक्सपेक्टेशन हमारा था। तो दिस इज n ऑफ वाई बार, तो हमारे पास n वाई बार यहाँ पर आ गया। अब आ जाते हैं हम वापस इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो दिस इज वाई आई माइनस वाई बार,
अब इनका एक्सपेक्टेशन पर हम वापस खोलना चालू करते हैं। तो अगेन दिस इज वाई आई का होल स्क्वायर, सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई का होल स्क्वायर, इस पर्टिकुलर पे ले लेते हैं। सो व्हाट इज दिस, दिस आर द सर्टन वैल्यूज फॉर अस, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई का होल स्क्वायर। हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एंड समेशन ऑफ होल स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ वैल्यूज क्या आ रही हैं, हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, दिस इज वेरिएंस ऑफ वाई, सो दिस इज माय वेरिएंस ऑफ वाई, प्लस प्लस क्या आ रहा है, प्लस मेरे पास आ रहा है, प्लस क्या आ रहा है मेरे पास, बीटा नॉट। अब बीटा नॉट पे हम क्या कर रहे हैं, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स बार का होल स्क्वायर, सो दिस इज होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार का होल स्क्वायर, सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर। सॉरी, मैंने आप लोगों को अभी ये नहीं पढ़ाया है, फाइन, तो मेरे को आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी, सॉरी फॉर देट, मैं थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो गया आप लोगों के लिए, फाइन। सो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका थोड़ा सा और बेसिक मैथमेटिक्स पर लेके जाता हूँ, एंड देन विल कवर ऑन एन एवरेज होल थिंग फॉर दैट, फाइन। मीनवाइल अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप मुझसे पूछ लें,